Now shifting our focus to the menace that Delhi is currently grappling with. Every morning we see scenes of national capital being shrouded by a thick layer of smog. It is without a shadow of doubt that the primary cause of the quality deteriorating in the national capital is the stubble burning in the neighbouring states of Punjab and Haryana. This is not a new phenomenon, though we have seen this take place last year as well and the year before as well. As Delhiwalas choke on toxic fumes, we know that elections to the Vidhan Sabha are on the anvil. Even so, the politicians continue to bicker and point score while the people of the Delhi are continuing to suffer. While we talk about the kind of pollutants which are in fact adding more pollution into the area of national capital, viewers, this is important to understand that the visuals that you see on your screen are of the stubble burning impact with the red parts there on the screen can show you the parali burning that's happening across the region and now contributing to the increasing levels of air pollution that you can see. And if we talk about the previous days that have gone by from 23rd October to in fact 28th October, these are the visuals, these are the satellite images to begin with, and from 23rd of October to again going till 27th or 28th October, the visuals can be seen of the increasing air pollution due to the parali burning. The parts where it is in fact highlighted as red is where the farm fires or the biomass emission is happening, while there is in fact the Supreme Court issuing guidelines over containing and putting a blanket ban on the parali burning. This in fact remains to be a very concerning picture, viewers, because at this point of time, the extent at which the biomass emission and the parali burning is happening is only adding more fuel to the fire, because the parali burning is not only just adding more emissions and more pollutants in the air, but also preparing Delhi to be entire closed toxic gas chamber, as in fact other sources of pollution also added to the increasing levels of AQI, which escalate into the severe category ahead of the Diwali season. All right, viewers, joining me on the broadcast right now to share the latest updates on the ground are my colleagues Mukul Satija, who's joining me from Karnal, and Vijay Kumar, who's joining me from Sirsa. All right, I appreciate you both speaking to me at this point of time. Starting with Mukul, Karnal में जिस तरीके से क्या ऐसे अलग इंडिविजुअल इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे पराली के जलने से आसपास हवा का और जो हिसाब है या हवा में और तकलीफ आई है, उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ऐसी कई तमाम जगह हैं जहां पर ये साबित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस इशू करने के बाद भी दोनों सरकारें अब तक बिल्कुल असफल रही हैं कि पराली को ना जलाया जाए। पराली सिर्फ एक ऐसा कंट्रीब्यूटर नहीं है, पर पराली की वजह से जब विंड भी उस डायरेक्शन में ब्लो करती है तो दिल्ली की तरफ आती हुई जो हवाएं हैं वो बहुत पोल्यूशन को केटर करती हैं। तो मुकुल, करनाल में क्या स्थिति है? सरकारें और जो फार्मर्स हैं वो स्पेशली क्या स्टैंड मेंटेन करते हैं इस समय पराली को लेकर? बिल्कुल, देखिए, पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अधिकारी उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। हालांकि 80 किसानों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया गया है, उनको जो है जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना तकरीबन 1,20,000 रुपए के आसपास उन पर जुर्माना लगाया गया और ऐसे में 3 किसानों को जो है गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए गए थे। उसमें से 2 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था। लगातार अगर प्रशासन की बात करें, कार्रवाई की जा रही है। किसानों से अपील भी की जा रही है कि पराली को ना जलाया जाए। हालांकि काफी किसान ऐसे भी हैं जो पराली को नहीं जला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम AQI की बात करें, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें सितंबर से अगर हम बात करें, सितंबर में ज्यादा मामले थे पराली जलाने के, लेकिन अक्टूबर में फिलहाल कुछ हद तक कम जरूर हुए हैं। वहीं कृषि अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार किसानों के बीच में जाया जा रहा है, गांव-गांव में जाया जा रहा है और लगातार जो उनको समझाया जा रहा है कि पराली ना जलाया जाए, उससे जो है काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, प्रदूषण काफी ज्यादा हो रहा है और लगातार उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हो रहे हैं। कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसान जो है वो क्या इस बात को मानते हैं या उसके बावजूद भी जो है ये पराली जलाने के मामले इसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी।
करनाल की हमने जो ग्राउंड पे हो रही है स्थिति उसको देखा है, और अब जाते हैं सिरसा में जहां विजय कुमार हैं हमारे सहयोगी। विजय, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिरसा के अंदर किस तरीके की स्थिति है? जो सरकारें हैं स्पेशली पंजाब और हरियाणा की, क्या उन्होंने पराली के विषय के ऊपर फार्मर्स को और जितने भी किसान हैं, क्या उनको लेके स्पेशल सख्ती बरती है? और अगर बरती है तो क्या वो इस मामले के ऊपर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि काफी जगहों पे अभी भी किसान जो है वो पराली लगातार जलाते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से चाहे बैन हो या ना हो, दिल्ली में जो हवा है वो तो प्रदूषित हो ही रही है। बिल्कुल सिमरन, सिरसा की बात की जाए तो हरियाणा के अंतिम छोर पर सिरसा बसा हुआ है, पंजाब और राजस्थान के साथ सटा हुआ है। हालांकि पंजाब में जो पराली की घटनाएं हैं वो काफी देखने को मिलती हैं, पंजाब के साथ ही सिरसा सटा हुआ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले में अभी 20% ही पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो सिरसा जिला में देखने को मिली हैं। अब तक आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 20 जो केस हैं वो अभी जो मामले हैं वो पराली जलाने के सामने आए हैं। हालांकि काफी किसानों को जुर्माना भी किया गया है और कुछ किसानों पर FIR भी दर्ज की गई है। हालांकि जो जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार है बार बार किसानों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके किसान जो हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे में दिवाली के पटाखे और कहीं ना कहीं किसानों की पराली जो है आम लोगों के लिए आफत बन सकती है, क्योंकि वायु प्रदूषण इन 3-4 दिनों में काफी बढ़ने की जो उम्मीद है वो लगातार जारी रहती है। हालांकि सरकार की तरफ से जो है ग्रीन पटाखे ही जलाने की जो है अनुमति दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो ठिकानों से जो लोग पटाखे खरीदते हैं या पटाखे जलाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण जरूर दिखाई देगा। इसके साथ ही किसान जो अब 2-3 दिनों में जो रात्रि में पराली जलाएंगे कहीं ना कहीं उसका भी धुआं अब आम लोगों के लिए आफत बनकर सामने आ रहा है। हालांकि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो दिन रात पूरी तरह से मुस्तैद हैं, गांवों में ठीकरी पहरा भी दे रहे हैं। सरपंच, नंबरदारों और कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी पूरी तरह से मुस्तैदी से लगाई गई है ताकि कोई भी पराली का केस सामने ना आए। लेकिन बावजूद इसके दिवाली के त्योहार के नजदीक आते आते जो पराली के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से जो आम लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सिरसा के नागरिक अस्पताल में भी ऐसे काफी जो मरीज हैं वो लगातार एडमिट हो रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हालांकि छोटे बच्चे या जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको दिवाली के या पराली की जो घटनाएं घटने के होने के चलते उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो कुल मिला के पराली और दिवाली के जो पटाखों का जो धुआं है वो अब आम लोगों के लिए अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों के लिए आफत बन सकता है। जी। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.